Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will explain one of the important step of surgical procedure for the removal of impacted mandibular third molar teeth, that is the removal of overlying bone. After clinical and radiological assessment, be ready to face and overcome the difficulties during removal of the impacted tooth to avoid complications during and after the surgery. First step is the anesthesia, and anesthesia, that is local anesthesia in case of impacted mandibular third molar, is achieved by all of you know inferior alveolar nerve block, buccal nerve block, and lingual nerve block. Local infiltration for hemostasis in surgical field can also be used. Um, Second thing is that the clinical and radiological assessment will determine whether we will extract the tooth under local anesthesia or with sedation, or you can also judge that extraction is difficult and or the patient is difficult to handle. So general anesthesia can also be used depending upon the clinical and radiological assessment. Now the steps of surgical procedure for the removal of third molar mandibular teeth. Five basic steps are: number one is reflecting adequate flaps for accessibility, removal of overlying bone, sectioning the tooth, delivery of the sectioned tooth with elevator, care of post-surgical socket and suturing of the wound, reflecting adequate flap for accessibility. Uh, mm, you can you can see the detail in our previous video. Here we will only recap the types of flaps, that is the mucoperiosteal flaps used for the impacted mandibular third molar. And they are envelope flap, most commonly used, triangular flap, or extended triangular flap. For details, see our previous video about reflecting adequate flap for accessibility. Now come to the topic, removal of the overlying bone. First, we will discuss the instruments for bone cutting. That is the chisel. Nowadays, it is less commonly used. Second is the burr, a round burr for removing the bone, and the Fisher burr for sectioning the tooth. लेकिन कुछ सर्जन जो है वो फिशर बार को ही बोन के लिए भी यूज करते हैं और टूथ कटिंग के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन राउंड बार को जो है वो यूज करना चाहिए बोन कटिंग के लिए, और फिशर बार को सेक्शनिंग के लिए करना चाहिए, टूथ की सेक्शन के लिए। ठीक है, बार को जाहिर है माउंट करना पड़ेगा माइक्रोमोटर पे। माइक्रोमोटर किस तरह होती है? माइक्रोमोटर जो आपने इस्तेमाल करनी है, दैट शुड बी ऑटोक्लेवेबल। ठीक है, two types of micromotor is available, that is air motor and second is the electric motor. इसको थोड़ा समझ लें, ठीक है ना। ये देखें, ये हमारे पास है ऑटोक्लेवेबल माइक्रोमोटर है, लेकिन ये क्या है? एयर मोटर है। एयर मोटर इसको इसलिए कहते हैं कि देखें, आप इसको स्लो हैंड पीस भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपने इसको डेंटल चेयर में उसी तरह अटैच कर देना है जिस तरह आप एयर टरबाइन या फास्ट हैंड पीस को करते हैं, ठीक है। और ये जो है एयर कंप्रेसर जो है आपका डेंटल चेयर जिस पे वर्क करती है, बाकी हैंड पीस करते हैं, ठीक है। उसी तरह ये जो है ना, ये उस पे बेस करेगी एयर मोटर के प्रेशर पे, ठीक है ना, यानी कंप्रेसर का जो प्रेशर है। तो ये ऑटोक्लेवेबल है। देखें, यहाँ से डिटेच हो जाता है, ये इसका हेड पोर्शन है, ठीक है, ये हेड पोर्शन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये इसका जो है वो वाला पोर्शन है जो डेंटल चेयर के साथ अटैच हो जाता है, और ये वो इसका जो यहाँ पे माउंट होता है, ठीक है ना, ये ऑटोक्लेवेबल है। तो इनको आपने ऑटोक्लेव कर लेना है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो डेंटल चेयर के साथ अटैच होता है, ये ऑटोक्लेवेबल नहीं है और इसकी जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। फिर जब आप इसको यूज करते हैं तो माउंट कर देते हैं, इसी तरह इसको इसके ऊपर माउंट कर देते हैं, और फिर इसका एक अपना तरीका है
कि कैसे आपने जो है ना इसको रेप करना है क्लॉथ के साथ, और पेशेंट के लिए ये वाला एरिया एक्सपोज नहीं होगा, बल्कि पेशेंट के लिए ये वाला एरिया एक्सपोज होगा, ठीक है। अंडर एसेप्टिक कंडीशन आपने काम कैसे करना है, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। यहाँ देखें, ये इलेक्ट्रिक मोटर है, इसमें एयर प्रेशर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, यानी कंप्रेसर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो डेंटल चेयर में आपको लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इंडिपेंडेंट ऑफ डेंटल चेयर में इसको ओटी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप लोकल एनेस्थीसिया के दौरान में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ चूँकि डेंटल चेयर में आप इस हैंड पीस को, जिसको हम स्लो हैंड पीस भी कहते हैं, एयर मोटर को, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं ओटी में भी और अपने डेंटल चेयर के साथ भी, लेकिन इसको ज़रूरत नहीं होती आपके कंप्रेसर की, ठीक है। ये देखें, ये इसका वो इक्विपमेंट है, और ये जो है ना ये उसी तरह डिटेच हो जाते हैं। ये ऑटोक्लेवेबल पोर्शन है इसका, ठीक है। ये स्ट्रेट है, ठीक है, और ये कंट्रा एंगल है। मोस्ट कॉमनली जो है ये स्ट्रेट हैंड पीस, स्ट्रेट जो है इसका हेड है, ये यूज़ होता है, जिसको आप स्ट्रेट हैंड पीस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ आप अटैच इसको कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, dental handpiece या air turbine such as used for restorative dentistry should never be used to remove bone around third molars to section them, ठीक है। ये देखें आप, डेंटल हैंड पीस, इसको फास्ट हैंड पीस भी आप कहते हैं, एयर टरबाइन, ठीक है, कॉमनली इसको कहते हैं। ये आपने इसको यूज नहीं करना, क्यों कि इस फास्ट हैंड पीस की वजह से क्या होता है कि एयर जो है ना ट्रेपनेट हो जाती है इन टिश्यूज में, and that is known as a surgical emphysema, तो common complication करते हैं। तो never use this air turbine in the third molar surgery। अच्छा, बोन को रिमूव कैसे करना है, ठीक है। क्या फैक्टर्स हैं जो बोन रिमूवल उस पर डिपेंड करेगी, तो 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। कि डेप्थ ऑफ इम्पेक्शन, सेकंड इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द रूट्स, इन रूट का कर्वेचर कैसा है, ठीक है, डाइवर्जेंट्स हैं, फ्यूज हैं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा, एंड द एंगुलेशन ऑफ द टूथ। तो ये 3 जो है ना फैक्टर्स हैं। दूसरा ये है कि भून जब आपने रिमूव करनी है, तो सबसे पहले आपने अक्लूजल एस्पेक्ट ऑफ द टूथ पे रिमूव करनी है, इन ऑर्डर टू एक्सपोज द क्राउन ऑफ द टूथ, आपने उसको फुली एक्सपोज कर देना है। देन यू विल कम टूवर्ड्स द बक्कल साइड, आपने बक्कल साइड पे आना है, एस्पेक्ट ऑफ द टूथ, एंड रिमूव द बोन डाउन टू द सर्वाइकल लाइन, ठीक है। इसके बाद फिर आपने बक्कल साइड पे रिमूव करने के बाद अगर डिस्टल साइड पे भी रिमूव करने की जरूरत है, देन यू विल मूव टुवर्ड्स द डिस्टल साइड। तो क्या प्रोटोकॉल हुआ? नंबर 1 इज रिमूव फ्रॉम द अक्लूजल एस्पेक्ट ऑफ द क्राउन सो दैट द क्राउन ऑफ द टूथ शुड बी फुली एक्सपोज्ड, देन कम टुवर्ड्स द बक्कल साइड, एंड देन कम टुवर्ड्स द डिस्टल साइड, ठीक है। ये यहाँ पे देखें, यहाँ फ्लैप रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप रिफ्लेक्ट है। यहाँ पे ये अक्लूजल एस्पेक्ट से बोन को रिमूव कर रहा है स्ट्रेट फिशर के साथ। राउंड, आप लोग राउंड बर यूज करें, ठीक है। इसको फुली एक्सपोज इसने किया, ठीक है, ओवरलाइंग सबसे पहला स्टेप है। बी में आ जाएं, जब इसने अक्लूजल एस्पेक्ट पे रिमूव कर लिया, ठीक है, उसके बाद ये अब आ गया है बक्कल साइड पे, ठीक हो गया, बक्कल साइड पे। फिर अगर यहाँ पे डिस्टल साइड पे भी बोन मौजूद है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे ये डिस्टल साइड पे भी रिमूव कर रहा है, हालांकि इसने फर्स्ट स्टेप क्या है, बक्कल एस्पेक्ट है, ठीक है। तो फिर डिस्टल एस्पेक्ट आपका थर्ड स्टेप होगा, याद रखें। आप लोगों ने फर्स्ट सबसे पहले अक्लूजल, देन बक्कल, एंड देन द डिस्टल्स, ठीक है ना। आपने डिस्टल साइड पे लास्टली वो करनी है, ठीक है। अब यहाँ आ जाएं, देखें इस रेडियोग्राफ में आपको इम्पेक्टेड टूथ नजर आ रहा है, क्लिनिकली विजिबल नहीं है, एम्बेडेड है, ठीक है कि नहीं। इसके लिए आपने लिया ट्राई एंगुलर म्यूकोपेरियास्टियल फ्लैप लिया, ठीक है। ये देखें, क्लिनिकल इसकी पिक्चर है, और वही प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं जो पिछली वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखें, इसका जो डिस्टल रिलीजिंग इंसिजन है वो थोड़ा सा लेटरली किया हुआ है, ठीक है, लिंगुअली नहीं जाना, क्योंकि लिंगुअल नर्व को आप डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लैप का दूसरा व्यू दिया गया है, ठीक है, देखें उसी तरह दिखाई दे रहा है। अब आपने फर्स्ट स्टेप करना है, बोन को अक्लूजल एस्पेक्ट से क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है राउंड बार है, और आपने अक्लूजल एस्पेक्ट से बोन को रिमूव करना है, ये फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड देखें, एक्सपोज हो गया है, आपको क्राउन नजर आ रहा है, ठीक है ना। आपने क्राउन को एक्सपोज कर दिया क्योंकि आपने
बोन को अक्लूजल एस्पेक्ट से रिमूव कर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने क्या करना है कि नेक्स्ट द बर कैन बी यूज टू रिमूव द बोन बिटवीन द टूथ एंड द कार्टिकल बोन इन द कैंसलस एरिया ऑफ द बोन विद द मैन्यूवर कॉल्ड डिचिंग। इसको समझते हैं डायग्राम से, ठीक है ना। इस डिचिंग का फायदा ये है कि यहाँ आपने एलिवेटर को अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ आपने परचेस पॉइंट भी बताएंगे हम आपको कि परचेस पॉइंट क्या होता है। वो परचेस पॉइंट आपने वहाँ पे बनाना है, ठीक है, और वहाँ से टूथ की डिलीवरी करनी है। अब देखें ये डिचिंग क्या है। ये देखें ये टूथ है और ये कार्टिकल प्लेट आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। सो बर आपने बर को यहाँ पे स्ट्रेट रखना है, ठीक है ना, पैरेलल टू द टूथ। आपने कैंसलस बोन जो है दिस बिटवीन द टूथ एंड दिस कार्टिकल प्लेट, ठीक है ना, बक्कल कार्टिकल प्लेट के दरमियान में आपने बोन को रिमूव करना है। और बहुत नीचे की तरफ ये जो बक्कल कार्टिकल प्लेट आपको नजर आ रही है, इसे बहुत नीचे की तरफ नहीं जाना। इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूँ। इसको क्या कहते हैं, डिचिंग कहते हैं, ठीक है ना। डिचिंग आपने कर दी। अच्छा, यहाँ पे ये होगा कि जब आप लेटर ऑन टूथ को रिमूव करते हैं अगर या रूट को रिमूव करते हैं, तो यहाँ से आपने परचेस पॉइंट एक छोटा सा सुराख बनाना होगा, ठीक है ना। तो उससे जो है ना आप जब इसको एलिवेट करेंगे तो ये जो बकल कार्टिकल प्लेट है ये आपको सपोर्ट देगी, ठीक है। तो यू विल इजीली लिफ्ट द टूथ। तो आपने क्या करना है, डिचिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि डिचिंग में इस एरिया में आपने परचेस पॉइंट भी बनाना है और टूथ को आपने जो है एलिवेटर से, उस एलिवेटर से क्रायर एलिवेटर है, क्रेन पिक एलिवेटर है, वो उससे आपने स्ट्रेट एलिवेटर को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपने टूथ को एलिवेट करना है। बोन शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिंगुअल एस्पेक्ट। देखें लिंगुअल एस्पेक्ट जो है आपने यहाँ से बोन रिमूव अक्लूजल एस्पेक्ट से रिमूव करनी है, बक्कल से करनी है, डिस्टल साइड से करनी है, बट नॉट फ्रॉम द लिंगुअल एस्पेक्ट, क्योंकि लिंगुअल एस्पेक्ट से डैमेज है लिंगुअल नर्व का, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू रिमूव द बोन फ्रॉम द लिंगुअल एस्पेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये देखें अब वो डिचिंग कर रहा है, ठीक है, बकल साइड से बोन को रिमूव भी कर रहा है और इसको आप डिचिंग के स्टाइल में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिनिकल पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।